All right. Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to another class. We are going to talk about emotion regulation skills now because we are done with mindfulness and all the skills that is attached with it. और आज हम बात करेंगे इमोशनल रेगुलेशन के बारे में, डिस्ट्रेस टॉलरेंस के बारे में, एंड अगर टाइम हुआ तो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल्स भी हमने करनी है जो बहुत ज़रूरी है. Alright, so before I begin, I would like to first ask you, okay, what do you understand when we talk about emotion regulation? क्या होती है emotion regulation आपके हिसाब से? I think how you deal with your emotions, like heightened emotions जो होते हैं उनको balance किस तरह करते हैं. हाँ बिल्कुल ठीक है. How you deal with your emotions, especially those emotions which are very intense. ठीक है. उसके अलावा और कोई शेयर करना चाहेगा? How you control your emotions, Mahanur said. Yes. देखिए, our goal is very simple. We have to first understand our emotions. Only then we will be able to reduce the overwhelmness which is attached with those emotions. And then हम जब अपने emotions को समझना शुरू हो जाते हैं, we are able to respond to them in a way which becomes helpful for us, which helps us to calm down, which helps us to see practically. Ikra said that emotional management is what emotion regulation is. Saida Haram said to be able to know your emotions, yes, to understand your emotions, to be aware of your emotions, as in why you're feeling them, and then have control over them. हाँ जी, हमने awareness के साथ साथ उसको manage करना भी सीखना है. These are two different things: to understand your emotion and to be able to control them and to be able to deal with them in a healthier way. क्योंकि इमोशंस क्या है, एक ऐसी चीज है, एक नेचुरल एलिमेंट है जो हर इंडिविजुअल महसूस करता है. वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दोज इमोशंस टू कम अप, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू कम. what we are going to learn is how we can recognize them and how we can deal with them. अच्छा जी. All right, raise your hand if you have ever felt completely overwhelmed by your emotions. Let's see how many hands do we see now. जी. Think about it and then you can raise your hand or not if you have ever felt completely overwhelmed only because of your emotions. Okay, I see 5 hands, I think. The purpose of asking this question is that it's very natural to be overwhelmed. कभी कभार ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जिससे यू फील लाइक के आई एम द ओनली पर्सन एक्सपीरियंसिंग दिस इमोशन और आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट. इट्स एक्चुअली मोर कॉमन देन यू थिंक. बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, स्पेशली एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप तो कभी भी इमोशनली ओवरवेल्म नहीं हो सकते बिकॉज you are expert in this and you are aware about all these things. But still, even those individuals also feel overwhelmed, also sometimes lose themselves, also not being able to control it because यही emotions की आप समझ ले उनकी पावर होती है. That if we feel like we are not understanding our emotions, they take over us. वो हमारे ऊपर रूल करने लग जाते हैं. और आज की क्लास में हमने यही सीखना है कि किस तरह से हम उनको हाउ वी आर गोइंग टू लर्न टू मैनेज इट. अच्छा जी, अब इमोशनल रेगुलेशन होती है टू बेसिकली किस तरह से हमें रेगुलेट करना है. डीबीटी में हमें सिखाते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन स्किल्स. ये वो स्किल्स होते हैं दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट इमोशंस, manage those emotions and respond to those emotions in an effective way. Now, it does not mean कि उस individuals के बहुत ज़्यादा emotions हैं. It just means कि जब आप overwhelmed होते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि you have so many emotions. It just means that those emotions at that particular time was feeling very hard to control. उस टाइम पे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे and then XYZ things happened. ये मतलब होता है टू लर्न हाउ टू इमोशनल, जो इमोशन डिसरेगुलेशन स्किल्स जो हमें सिखाई जाती है. अच्छा, किसी ने आपने सवाल किया हाउ डज डीपीटी अप्लाई टू पीपल विद एलेक्सिथीमिया.
ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं. कीप दैट क्वेश्चन सेफ, विल डील विद क्वेश्चंस लेटर ऑन. अच्छा, अब हमने बात करनी है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन की जो स्किल्स हैं वो डीबीटी के ऊपर किस तरह से अप्लाई होते हैं. अब डीबीटी का इट डज नॉट मीन कि जो डीबीटी डज नॉट बिलीव दैट ये जो डिफिकल्ट इमोशंस होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि समवन इज वीक, मे बी दे आर ड्रामेटिक, मे बी दे आर सेंसिटिव, मे बी दे आर नॉट मोटिवेटेड टू डू एनीथिंग. इंस्टेड डीबीटी हमें एक्सप्लेन करता है कि इमोशंस की जो कहानी है, जो इंटरेक्शन है, जो सिलसिला है इमोशंस का, वो दरअसल बायोसोशल मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, जहाँ पे वो बात करते हैं कि हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल इनवल्नरेबिलिटी होती है, वो इंटरेक्ट करती है विद द इन्वायरमेंट विच इज नॉट हेल्दी, विच इज नॉट बेनिफिशियल, विच इज नॉट इफेक्टिव. जब वो उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, देन हमारे इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और हम उसको कोप अप करने के लिए मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स की तरफ जाते हैं. ठीक है. अच्छा, अब वो मॉडल जो है ना वो बड़ा इफेक्टिव मॉडल है, हम उसी की तरफ ही आने लगे. हाँ जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. अच्छा, हम बात कर रहे हैं बायोसोशल थ्योरी की. अच्छा, क्या आप लोगों ने पहले इस थ्योरी के बारे में पढ़ा है, कुछ आइडिया है व्हाट इज बायोसोशल थ्योरी? जो स्पेशली हमारे पास अगर स्टूडेंट्स हैं, क्या उन्होंने इस थ्योरी को किसी और, नॉट जस्ट इन डीबीटी बट किसी और टॉपिक के अंदर पढ़ा है? जी, यू रेज योर हैंड. आई थिंक पहले से ही हुआ है. अच्छा, हफ्सा ने कहा है यस, सईद हरम ने कहा है यस. ठीक है, चलो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है. लेकिन अब हम बायोसोशल थ्योरी को पढ़ रहे हैं विद डीबीटी. बायोसोशल थ्योरी हमें यही एक्सप्लेन करती है कि इमोशन डिसरेगुलेशन के पीछे दो मेन फैक्टर्स हैं. बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी या बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज, कुछ आप कह लो इंडिविजुअल्स हैं जो मोर वल्नरेबल है टुवर्ड्स इमोशंस, जो ज्यादा इम्पल्सिव है ड्यू टू बायोलॉजिकल रीजंस. ठीक है. अब बायोलॉजिकल रीजंस क्या हो सकती है कि वो उनके, आप समझ लो उनका टॉलरेंस लेवल कम है, उनके साथ लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ हुआ है कि वो बर्दाश्त की अब उनकी खत्म हो गई है, अब छोटी सी बात है वो ट्रिगर हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि वो दे आर वायर्ड टू एक्सपीरियंस दोज इमोशंस डिफरेंटली. ठीक है. अगर आप किसी ऐसे इमेजिन करें ऐसे बंदे को जो ऑलरेडी सेंसिटिव है या ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील करता है हर इमोशंस को, वो उसी एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है जहां पे उसके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई, जहां पे उसको हमेशा ये कहा है कि स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, क्यों तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं. जहाँ पे उनको कभी सिखाया ही नहीं कि किस तरह से आपने इमोशंस को मैनेज करना है. और इंस्टेड उसके पेरेंट्स भी इस तरह के थे, उसका घर का माहौल भी इस तरह का था, फिर उसका सोशल सर्कल भी इस तरह का हुआ. तो जब ये दोनों चीजें मिलती है ना, दैट्स व्हेन वी सी अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू कंट्रोल इमोशंस. अब प्रॉब्लम कैसे डेवलप होती है? जब इमोशनल इनवल्नरेबिलिटी मिलती है विद सोशल फैक्टर्स, इनवैलिडेशन, you start doubting your experience. You always have this thought कि यार मैं ही क्यों हमेशा इस तरह से महसूस करता हूँ, या कहीं मैं तो नहीं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हर चीज को. वो इमोशंस को, हर छोटे से छोटे इमोशंस को भी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ फील करते हैं. अब बिकॉज आपके इमोशंस बहुत इंटेंस है, नहीं कंट्रोल हो रहे, हम फिर किस तरफ जाएगा बंदा? टुवर्ड्स टेम्परेरी रिलीफ. ऐसे बिहेवियर्स की तरफ चला जाएगा जो बेशक उस टाइम पे हार्म, उसके लिए हार्मफुल होंगे, लेकिन उस टाइम पे उसको वो रिलीफ दे रहे हैं. जैसे कि दे माइट स्टार्ट स्मोकिंग, they might start blocking the other person, they might start misbehaving even with their parents or with other partners या किसी के साथ भी. अब ये जो बिहेवियर्स है ना, ये डीपीटी इनको प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स कहते हैं, नॉट बैड. ये बैड बिहेवियर्स नहीं होते, ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स होते हैं, बिकॉज उनका पर्पस होता है टू रेगुलेट द ओवरवेलमिंग इमोशंस जब कोई और इफेक्टिव स्किल्स अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है. इज दैट क्लियर? अब
क्योंकि हमारे पास इस थ्योरी की वजह से ही जो है ना वो डीबीटी ने सारे स्किल्स बनाई है टुवर्ड्स टू हैंडल द इमोशंस, बिकॉज यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी है और सोशल फैक्टर्स भी है। अच्छा, अब डेफिनेटली डिसरेगुलेशन जो है ना वो अक्रॉस एजेस डिफरेंट तरीके से नजर आती है, ठीक है, और ये सडनली अडल्टहुड में नहीं होता, ये छोटे बच्चों के उसमें भी ये सिम्टम्स आते हैं। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है जी, बहुत ज्यादा बच्चों के टेंट्रम्स, बहुत ज्यादा ओवर, आप समझ लेना कोई बच्चा है जो हर बात पे रो रहा है, हर बात पे चीख रहा है। अब वो इसलिए वो रो रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूं, किस तरह से पहचानूं, किस तरह से उसको डील करूं, क्योंकि ना ही उसके बड़े समझ रहे हैं उसके इमोशंस को, और उनके पास वर्ड्स नहीं है टू एक्सप्रेस, या उनको सिखाया ही नहीं गया बिहेवियर कि कभी कभार अगर हम इस वक्त इस चीजों को मैं रो के नहीं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके पास वो स्किल्स है ही नहीं, कोई न्यू रूटीन उनको बताई जाए वो एडजस्ट नहीं हो पाते। जो मिडिल चाइल्डहुड है उनका क्या है जी, दे थिंक मोर लॉजिकली, ठीक है, वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ इस एज पे, स्पेशली जो 8 to 12 ईयर्स होती है। वट दे आर डूइंग, दे आर स्ट्रगलिंग विद एकेडमिकली, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा, फ्रेंड्स नहीं बन रहे, तो किस तरह से शो अप होंगे, इमोशनल आउटबर्स्ट होगा, हर वक्त ही गुस्से में होंगे, हर वक्त ही चिड़चिड़े होंगे। और इसी एज में आप ये देखिए कि जो बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस अपने आप को महसूस करते हैं वो परफेक्शनिज्म की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं या सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं, ठीक है, विड्रॉल हो जाता है, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आएगा जी 2 दिन कमरे में बंद रहेंगे। दैट्स हाउ these are the symptoms that they are emotionally dysregulated। अच्छा, उसके बाद टीन एज आ गई, अडोलेसेंस की एज आ गई, जो कि सबसे ज्यादा इंटेंस इमोशनल रिएक्शंस आते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं देखे होंगे इस तरह के सिम्टम्स इंडिविजुअल्स में, तो अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि दे डू नॉट हैव द इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। पर्पस आपको ये बताने का ये है कि सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि आपके क्लाइंट के अंदर इमोशनल डिसरेगुलेशन है कि नहीं है, बिकॉज ये एक बड़े कॉमन और बड़े नोन सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, अब ये याद रखने वाली जो चीज है वो ये है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन इज नॉट परमानेंट। द ब्रेन इज केपेबल ऑफ लर्निंग टू डील विद द इमोशंस एट एनी एज, छोटे बच्चे की भी उसमें सीख सकता है और बड़े के भी जब होता है तभी सीख सकता है। अगर आप साइकिल डेवलपमेंट की बात करें तो इसको बस क्विकली रैप अप करोगे फिर स्किल्स की तरफ जाएंगे। जब भी, टू समराइज इट, जब भी कोई भी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि उसको हेल्दी नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता, वहां पे इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको मैनेज करना। और फिर इन ऑर्डर टू cope up with those difficult emotions, the individual starts into maladaptive coping behaviors, not because they want to but because उनके पास वो effective skills ही नहीं होती। ये एक साइकिल है जो इमोशनल डिसरेगुलेशन से स्टार्ट होता है और वो आपके मैलाडेप्टिव बिहेवियर्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन सो फार, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द बेसिक स्किल्स। If anyone have any question or anything they want to add on about emotion dysregulation, they can. चले, आई थिंक नो क्वेश्चन सो फार। समझ आ रही है? ठीक है, परफेक्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स इमोशन रेगुलेशन स्किल्स। ये एक आप समझ लें कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बाकी डिस्ट्रेस टॉलरेंस पे भी रिपीट होती है, लेकिन जो बेसिक स्किल्स है ना वो ये सारी समराइज की हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले स्किल्स आती है स्टॉप स्किल्स। अच्छा जी, जब भी एज ये वो स्किल्स है जो आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप सिखा भी सकते हैं। स्टॉप स्किल क्या है जी, वेन एवर यू फील दैट योर इमोशंस आर सेमिंग, दैट यू आर, वेन एवर यू फील लाइक कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे, स्टॉप। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लिटरली से टू योर सेल्फ टू स्टॉप, और what else you can do, you can actually stop on the table as well, आप उसको इस तरह से करके अपने आप को कह सकते हैं टू स्टॉप। when you say this, your brain will get the signal that अभी आपने रिएक्ट नहीं करना, अभी हमने कोई मसल मूव नहीं करना, अभी हमने सिर्फ फ्रीज हो जाना है।
ठीक है, और मसल मूव से मुराद ये है कि स्पेशली दोज मसल जो आपके माउथ के हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो अपने माउथ के थ्रू एक्सप्रेस करता है। कोई ऐसी चीज हुई है, किसी ने कोई ऐसी बात की है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, सबसे पहले यू से स्टॉप, नो, जस्ट अ सेकंड प्लीज। जी, like I was saying कि whenever you feel that you are getting out of control, tell yourself to stop. जब हम एक पॉज ले लेते हैं ना, we understand what's going on. ठीक है, स्टॉप हो गया, हमने एक स्टेप पीछे कर लिया, we are going to take a step back, we are going to take a deep breath, we're not going to let our emotions make us react instantly. फीलिंग्स की वजह से, इमोशंस की वजह से we're not going to react. ठीक है, then we are going to observe that what's happening around us. Why am I reacting? Am I reacting because of what she or he has said, or am I reacting because of how I'm feeling right now? क्या मैं उसकी बात की वजह से रिएक्ट कर रहा हूँ, या मैं इससे रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टाइम पे मैं I'm feeling betrayal, I'm feeling broken, I'm feeling disvalued, I'm feeling disrespected, या मैं इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ? You see, and then once you feel कि मेरी बॉडी में इस टाइम पे क्या सेंसेशंस हो रही है, क्या मेरे थॉट्स आ रहे हैं, then we're going to proceed. STOP. S means stop, whatever you're doing, take a break. T, take a step back. O, observe, and then proceed mindfully. Now you take a bigger eye view, fish view. अब देखेंगे कि इस टाइम पे मेरी अगर दोस्त हो जो इस सेम सिचुएशन से गुजर रही हो, वो क्या करेगी, या मैं उसको क्या एडवाइस दूंगी इस टाइम पे? क्या जो मैं करने लगी हूँ या जो मैं कहने लगी हूँ, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद रहेगा नेक्स्ट टाइम? अच्छा, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू, लेकिन जब तक आप ये खुद पे नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी आप वैल्यू नहीं समझ पाएंगे. आफ्टर दिस क्लास, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज स्किल्स इमीडिएटली. ठीक है, इस सारी स्किल्स को आपने अपने ऊपर खुद इम्प्लीमेंट करनी है. ओनली देन यू विल बी एबल टू learn it. That's the first skill that helps us to regulate our emotions. React करने से पहले हमने सोचना है, and then we are going to proceed. ठीक है, all right. Let's move forward to the opposite action skill. अच्छा जी, अब जितने भी इमोशंस हम महसूस करते हैं ना, they activate us to respond the like in a negative way. वो हमेशा जो पहला हमारा रिएक्शन आएगा ना, वो नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, और ये बायोलॉजिकली वायर्ड होता है, इसमें हमारा कुछ सूट नहीं होता. वी आर वायर्ड इन अ वे कि अब सबसे पहले जब हमारे इमोशंस हम ऐसा फील करते हैं जो हमें अच्छा महसूस नहीं करवा रहे, तो सबसे पहला जो रिएक्शन हमारा दिल करेगा ना, वो एक नेगेटिव वे में करने का दिल करेगा. ये जो ऑपोजिट एक्शंस के लिए ना, इट शोज अस टू रिस्पॉन्ड ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट आवर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज टेलिंग अस टू डू. ठीक है, जैसे हमें जब प्यास लगती है, ठीक है, व्हेन वी फील थर्स्टी, हमारा बायोलॉजिकली हमें क्या, हमारा ब्रेन हमें कहता है कि उठो जाके पानी पियो. ऐसा ही है, जब हमें भूख लगती है, इट्स अ ब्रेन दैट इज गिविंग अस अ सिग्नल दैट इट्स टाइम फॉर अस टू ईट. वैसे ही हमने जो बाकी हमारे इमोशंस आएंगे, उनको भी हमने वैसे ही लेना है. एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमारे क्या अर्ज आती है? टू अटैक. जब हमें डर लगता है तो सबसे पहले क्या अर्ज होती है? टू स्केप. व्हेन वी फील सैडनेस, वी ट्राई टू विथड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन. जब हमें गिल्ट होता है, हम अक्सर नीचे मुंह कर लेते हैं. ठीक है, या हम चुप जाते हैं या उसको फेस नहीं करते. व्हेन वी फील लव, जब हमें दिल कर रहा होता है किसी से, किसी पे प्यार आ रहा होता है, किसी की बात अच्छी लग रही होती है, तो हमारा दिल करता है कि हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें. कोई छोटा बच्चा है, उसपे वो बहुत क्यूट हरकत कर रहा है, आप उसके पास जाएंगे, आप उसके यू विल पुल देयर चीक्स कि ठीक है, दिल कर रहा है प्यार करने को. ये सारे एक कॉमन अर्जेस है जो हम हर इंसान महसूस करता है.
और वी आर बायोलॉजिकली वायर्ड टू फील दिस थिंग्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इमोशन क्या है और उसके हमारे ट्रिगर्स क्या है, बिकॉज वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड, देन वी हैव टू लेबल देम। इमोशन क्या क्या इमोशन है जो हम इस टाइप पे फील कर रहे हैं, because awareness is the first step that will help us to identify the trigger and help us to come up with the effective action of it। साथ ही हमने नोटिस करना है कि इसके साथ साथ हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं, व्हाट आर वी थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट क्वेश्चंस आर कमिंग इन आवर माइंड, एंड देन वी आर गोइंग टू चूज एन ऑपोजिट एक्शन ऑफ इट। बिकॉज जब हमने लेबल कर लिया, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, ओनली देन वी कैन थिंक अबाउट द ऑपोजिट एक्शन ऑफ इट। अच्छा, अब ये है कि आई नो ये सारे वो स्किल्स हैं जो टाइम टेकिंग है, मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू डू इट। एक दफा नहीं होगा, दूसरी दफा नहीं होगा, तीसरी दफा नहीं होगा, बट फोर्थ टाइम यू विल एटलीस्ट आपके जहन में होगा कि अच्छा यार, ये जो मैं इस टाइम पे महसूस कर रहा हूँ ना, मे बी मुझे ये अर्ज आ रही है ये करने की, लेकिन मैंने इसका ऑपोजिट करना। वट एवर इमोशन दैट आई फील, आई हैव टू डू द ऑपोजिट ऑफ द अर्ज दैट्स कमिंग। क्लास में बात नहीं की जा रही ना, डर लग रहा है, हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। मैंने हैंड रेज करना ही नहीं, मुझे आज से भी आता है, मैंने फिर भी हैंड रेज नहीं करना। ये हमारा बिकॉज वी आर फीलिंग लो, हमारा कॉन्फिडेंट हुआ है, सेल्फ स्टीम लो हुई हुई है, तो अर्ज क्या आई है, दैट से क्वाइट, डोंट डू एनीथिंग। हमने इसका ऑपोजिट करना। ऑपोजिट क्या होगा, वी आर गोइंग टू रेज आवर हैंड एंड वी आर गोइंग टू स्पीक। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, मैं क्विक आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आप लोगों ने मुझे जल्दी से बताना है कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। फ्रेंड पे आपको गुस्सा आ गया है, ठीक है, आप फ्रेंड से बात करते हो, उससे कोई ऐसी बात कर दी जो आपको बड़ी सेंसिटिव लगी है। अब इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, व्हाट वुड बी द ऑपोजिट एक्शन दैट मस्ट बी डन? क्या उसका ऑपोजिट एक्शन होगा? बात कर दी है, वी आर गोइंग टू कन्फ्रंट कामली, ठीक है, वी आर गोइंग टू इग्नोर, ठीक है, लीना सेड ब्रीदिंग, टेक अ ब्रेक फ्रॉम द कन्वर्सेशन, महानूर सेड इग्नोर, ठीक है। या तो आप उससे आहिस्ता आवाज में कामली उससे बात करेंगे, या आप उससे बाद में बात करेंगे। दैट्स द बेस्ट ऑपोजिट एक्शन ऑफ व्हाट द अर्ज इज कमिंग, ठीक है। अगर आप दुखी है किसी चीज से, यू फीलिंग सैड, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, अर्ज क्या आ रही है, स्टे इन द बेड, डोंट डू एनीथिंग। आप अपने बेड पे जाके बैठ जाए, फोन पावर ऑफ कर दे, कुछ भी ना आप करें। अच्छा, अब इसका ऑपोजिट एक्शन क्या होगा, दैट यू एक्चुअली गेट अप फ्रॉम द बेड, यू टॉक टू अ फ्रेंड, यू गो आउट एंड यू डू समथिंग। जो अर्ज आ रही है ना, उसका आपने ऑपोजिट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, किसकी एग्जांपल दूँ? चले मैं आपको उसकी देती हूँ, जेलसी की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर आप सपोज एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, वाइफ या हस्बैंड कोई एक आपके पास थेरेपी के लिए आया है, वो ये कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत जेलस होती हूँ, वो कोलीग्स है उनकी मुझसे, वो जो भी व्हाट्सएवर कहानी है, ऑफिस में होते हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं, आई फील जेलस, और मैं उनका हर वक्त फूड चेक करती रहती हूँ जिससे उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब कौन इस क्लाइंट की थेरेपी करेगा, क्या आप उसको कहेंगे? आई थिंक आप लोग अगर अनम्यूट कर देंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई भी वॉलंटरली अनम्यूट करे और मुझे बताए कि इफ अ क्लाइंट इज कमिंग टू यू एंड दे आर से दैट दे फील जेलस, और वो अगले अपने पार्टनर का फूड बहुत चेक कर, लड़ाई पैदा होती है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? जी सही ना हरम? I would probably advise her कि वो अपने partner से बात करे, talk it out. Because obviously he probably has an explanation to his behavior as well. और हो सकता है कि वो overthink कर रही है. And maybe after checking his messages बार-बार, she's making the situation worse for herself. So I would probably tell her to stop that and talk it out, see what works out for the couple. Because sometimes हम ऐसी बातें avoid कर जाते हैं कि नहीं वो उनका वर्क एनवायरनमेंट है, आई डोंट हैव अ प्लेस टू टॉक अबाउट दैट, तो उससे मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो ठीक है, तो इसका ऑपोजिट एक्शन आप क्या उनको कहेंगे कि मैं फूड चेक करती हूँ जिसकी वजह से लड़ाइयाँ पैदा होती है, तो इसका ऑपोजिट एक्शन क्या होना चाहिए? probably not check the phone and give him space, trust him. हाँ, अगर आपको उस टाइप अर्ज आ रही ना कि मैं बस इसका फूड चेक करूं, तो उस टाइप पे आप रूम से बाहर चली जाए,
आप किसी और काम में मसरूफ हो जाए, आप अपने बिहेवियर के ऊपर फोकस करें कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, आपने Yeah, उनको फौरन ही totally कोई agree with एक्शन that. बताना है कि दे हैव टू डू इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, सो ऑब्वियसली हम अपने कभी कभार जब हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे होते ना, हम उनको सिखाते हैं कि आप किस तरह से अपने एक्शन को कंट्रोल करें, बिकॉज जब हमारे एक्शंस चेंज होंगे ना, हमारे इमोशंस भी उसको फॉलो अप करते हैं। So this is the second skill which is very effective and quick to learn, और इसका जो आप समझ आउटकम जो है ना वो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। अच्छा, लेट्स मूव फॉर all right, let's move forward to the ABC skill from emotional regulation। अच्छा जी, ABC skill हमें क्या बताती है? This is also very effective skill। जब भी हमने एबीसी स्किल्स को लर्न करना है ना, बेसिकली दीज आर दो स्किल्स दैट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द इमोशनल सफरिंग दैट वी एक्सपीरियंस बाय प्रिपेयरिंग आवर मूड एंड लाइफ इन एडवांस। हमने पहले से ही अपनी प्लानिंग करनी है कि हमें किस तरह से, जब हमें अपने ट्रिगर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिए है ना, नाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई हाउ वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ हेल्दी विदाउट हैविंग दोज इमोशनल आउटबर्स्ट। ठीक है, ये वो स्किल्स हैं जो हमें अपने आप समझ ले आगे जाके, या मतलब आपको वो पूरी लाइफ में जो है ना वो आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले ए इज फॉर एक्यूमुलेट पॉजिटिव इमोशंस। Accumulate positive emotions means that you add small positive experiences into your daily life, which can be short term or long term। हमने ऐसी जिंदगी बनानी है जो वर्थ लिविंग हो, ठीक है, फॉर द फ्यूचर रन एज वेल। ये लॉन्ग रन के लिए इफेक्टिव स्किल्स है। हमने अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म चेंजेस लेकर आनी है, कोई ऐसी एक्टिविटी हमने अपनी लाइफ में डाली है विच गोइंग टू ब्रिंग पॉजिटिव इमोशंस इनटू अस। Do things that give you joy, you know, talk to a friend, listen to music, नमाज पढ़ लें अगर नमाज से सुकून मिल रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है वो कर लें, कोई फनी चीज देखनी है वो कर लें, बट स्टार्ट एडिंग अप थिंग्स। छोटी 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 चीजें एड अप करें और फिर आगे वो लॉन्ग रन में आपको फायदा देगी। कोई ऐसा कैरियर चूज करें जो आपको पसंद है करना, जिससे आपको जॉय मिलता है, जिससे आपको सुकून मिलता है। ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ देंगे। कोई ऐसी स्किल सीखे, कोई ऐसी हॉबी सीखे जो आपको आगे जाके फायदा देगी। ठीक है, दैट्स बिल्डिंग मास्टरी, कि आप वो वाली स्किल सीखें, वो हॉबी सीखें, वो टैलेंट अपना कोई ऐसा शो का कैस करें जो आपको अच्छा महसूस कराए, कॉन्फिडेंट महसूस कराए, आपको लगे कि मेरे जो जिंदगी में जो भी कर रहा हूँ ना, दैट्स बेसिकली गिविंग मी एडवांटेज एज वेल। And then cope ahead with emotional situations. Prepare in advance by rehearsing difficult situations। अगर आपको लगता है कि क्लास में जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा या दूंगी तो हो सकता है मुझे एंजाइटी हो, मुझे घबराहट हो, हाउ एम आई गोइंग टू कोप अप विद दैट? व्हेन दैट सिचुएशन विल कम अप, मैं किस तरह से कोप अप करूंगा, पहले से ही प्लान कर ले। कोई भी बात करनी है किसी से, आपको पता है कि डिफिकल्ट कन्वर्सेशन है, हो सकता है कि वो मुझे कोई ऐसी बात कर दे जिससे मैं हाइपर हो जाऊं, तो स्टार्ट प्लानिंग। अगर वो ये कहेगा तो मैं ये कहूंगा, अगर उसने ये कह दी तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डील विद इट। ये तब आप इफेक्टिव होती है जब आपको ट्रिगर्स आप आइडेंटिफाई आपने किए होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सोशल एंजाइटी का कोई पेशेंट आया है, उसको पता है क्लास में जब भी जाना है, प्रेजेंटेशन जब भी करनी है, मुझे एंजाइटी होनी है, मुझे अटैक आना है, तो वी आर गोइंग टू प्लान थिंग्स अहेड। पहले से हमने इसको प्लान कर देनी है। ये वो स्किल्स है जो हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, ए एड्स हैप्पीनेस, बी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, एंड सी प्रिपेयर्स अस फॉर द चैलेंजेस दैट वी आर गोइंग टू फेस इन आवर लाइफ। ठीक है, इज इट क्लियर? जी, ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स प्लीज स्किल्स। प्लीज स्किल्स क्या होते हैं? अच्छा, प्लीज स्किल्स ये बहुत इफेक्टिव है, आसान है, वेरी इजी टू डू, लेकिन ये बात है कि आप लोगों ने पहले ये सारी स्किल्स अपने ऊपर भी इम्प्लाई करनी है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तभी इसको सीखेंगे। प्लीज स्किल्स क्या कहती हैं जी? प्लीज स्किल्स फोकसेस ऑन
taking care of our body. Take care of your mind by taking care of your body. सबसे पहले ट्रीट फिजिकल इलनेस. सर में दर्द है, बुखार हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उसको डील करना है. ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, तबीयत खराब होने की वजह से भी, सर में दर्द होने की वजह से भी यू फील इरिटेटेड, यू फील इमोशनली डिस्टर्ब. ठीक है, देन बैलेंस ईटिंग, हेल्दी डाइट रखें, हेल्दी न्यूट्रिशन खाएं, अच्छी चीजें खाएं, जंक कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स कम लें, स्वीट्स कम लें, ताकि आपकी डाइट भी अच्छी हो. टाइम से खाना खाएं, बिकॉज व्हेन वी आर स्किपिंग मील्स दैट्स आल्सो मेक्स अस एंग्री. हम ये कहते हैं यार वो मैंने खाना नहीं खाया हुआ था तो मेरे इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसके ऊपर हाइपर हो गया. ठीक है, तो ट्राई टू हैव अ बैलेंस ईटिंग. अवॉइड मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस. क्या हम करते हैं जी, मेडिकेशंस ले लेते हैं, स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, कोई ऐसी चीज जब हमारे इमोशंस को हमने स्केप करना है, इंस्टेंट स्केप हम ढूंढते हैं, एंड वी गो टूवर्ड्स द ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस. सबसे पहले तो अपना क्लाइंट से या खुद के लाइफ में देखें कि मेरे पास क्या कौन कौन से ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ से निकालना है. देन वी हैव बैलेंस स्लीप. ठीक है, गेट इनफ स्लीप बट नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल. ठीक है, आपने दिन में एटलीस्ट 8 से 9, 9 से 10 घंटे सोना होता है. ठीक है, बिकॉज जब आपकी नींद अच्छी होती है आपका मूड ठीक होता है. ओवर स्लीप करेंगे तो लेजी रहेंगे, कम सोएंगे तो चिड़चिड़े रहेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट एक्सरसाइज. ठीक है, मूवमेंट हेल्प्स रिलीज केमिकल्स इन द ब्रेन विच हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर मूड. हमारी बॉडी इमेज को ठीक करेंगे, हमारे माइंड को ठीक करेंगे, हमें फिट रखेंगे. जब आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, तो कभी भी आपको नेगेटिव बातें और नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर रन नहीं करेंगे, रूल नहीं करेंगे. यू विल बी एबल टू मैनेज इट. सो टू समराइज इट, टी स्किल्स क्या करते हैं, वो हमारे इमोशनल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल केयर को भी करते हैं. सो whenever you are talking to someone with emotional dysregulation, उसको जरूर पूछे कि आपकी रूटीन कैसी है, आप क्या खाते हैं, आप कब सोते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस है जो आप यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कोप अप विद योर इमोशंस. Then we have 7 positive self-talk examples and be your own cheerleader. अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो आप समझ लें कि आपने अपने हर क्लाइंट के साथ ना आप ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि आपने उनको ये बताना है कि एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. और ये जितने भी मेरे पास इस वक्त 9-10 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये उनके लिए भी है कि यू आर इन योर ओन कंट्रोल एंड वट एवर यू आर डूइंग इट्स द बेस्ट दैट यू आर डूइंग. आपकी ओपिनियन में ये बात, आपके जो भी ओपिनियंस है ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल जायज है. ठीक है, और ये आपने स्टेटमेंट जो है, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन आस्क फॉर व्हाट आई नीड, आई एम स्टिल वर्दी ऑफ लव, ये वो स्टेटमेंट है जो आपने उठते साथ ही अपने आप को कहना स्टार्ट करनी है. पहले दिन अजीब लगेगा कि ये क्या स्टेटमेंट है, दूसरे दिन अजीब लगेगा, लेकिन तीसरे दिन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दी स्टेटमेंट्स बिकॉज योर ब्रेन विल स्टार्ट बिलीविंग इट. ठीक है, अपने रूटीन में इसको ऐड ऑन करें, इनर क्रिटिक के ऊपर काम करें. रेफर टू योर सेल्फ इन द थर्ड पर्सन. मेरी जगह अगर कोई और होता तो मैं किस तरह से अपने आप के साथ डील करता या किस तरह से इस सिचुएशन को डील करता. सेट डेली रिमाइंडर्स. ठीक है, मोबाइल पे रिमाइंडर्स लगा ले अबाउट दीज स्टेटमेंट्स कि आई एम गोइंग टू रिपीट दीज स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट एवरी डे. चेक इन विद योर सेल्फ. अपने आप से बात करें, अपना हाल पूछे, हाउ एम आई डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, क्या चीजें जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है. एंड स्टे प्रेजेंट, स्टे इन द मोमेंट. जो भी मोमेंट आए उसको एंजॉय करें, उसके साथ मतलब फुली इन्वॉल्व होके आपने रहना है अपने आप के साथ, ताकि आप किसी भी चीज को मिस आउट ना करें. अच्छा, अब हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिपीट दी स्टेटमेंट्स विद मी. एक दफा माइक अनम्यूट करके ना मेरे साथ ये एक दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको रिपीट करें एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. चले, now you can unmute yourself and repeat after me. Say that I am doing the best I can.
I'm doing the best I I'm can. doing the I'm best doing I the can. best I can. I can ask for what I need. I can I ask can I for ask what can for I what ask need. I what need. I need. I'm still worthy of love if someone is upset with me. I'm I'm still still I'm worthy of worthy still love. of worthy love. of love if Upset someone me. is upset with Me, me. upsets with me. My opinions are just as valid as anyone else. My My opinions opinions My are are just opinion as just are as just valid valid as as valid. anyone anyone else. else. Yeah, perfect. अब ये जो statements है, you have to believe in those statements as well. इनको सिर्फ कहना नहीं है, इनके ऊपर believe भी करना है, because once you believe that, you will start doing things accordingly. आप trust me, अगर कोई ऐसा individual आपकी life में है ना जो आपको हर वक्त criticize कर रहा है कि तुमसे तो ये होगा ही नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, just tell yourself that I know that I'm doing the best I can. I know that I'm doing the best I can. ये बेसिकली काउंटर स्टेटमेंट की तरह यूज हो जाएगी कि उसकी बात की वैल्यू खत्म हो जाएगी जब आप ये बात रिपीट करेंगी दैट आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। होता क्या है कि जब हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है, जो नेगेटिव बात कर रहा होता है, हम उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है वो हम देते ही नहीं। ठीक है, सो दीज स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू, ये आपके लिए है। और अगर कोई भी कहीं पे भी जिंदगी के पॉइंट में आपको फील हो कि यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड या कोई आपकी बात की वैल्यू नहीं कर रहा, दीज स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू कम इन हैंडी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स डीपीटी। ठीक है, अब हम डीपीटी की तरफ आ गए हैं। अच्छा, ये जो डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स हैं, दीज आर आल्सो अमेजिंग स्किल्स। दे आर those skills to which helps you to survive the crisis। ठीक है, हम बेशक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन उस टाइम पे हमें सरवाइव करने के लिए स्किल्स हमारे आ जाती है। सी डीपीटी इज एबिलिटी sorry TPT is the ability to get through difficult moments without making the situation worse। किस चीज के लिए आपको हेल्प करता है? इन इमोशनल क्राइसिस, इट हेल्प्स यू टू cope up with short term problems and to prevent impulsive और harmful reactions। ठीक है, आप इमेजिन करें कि कोई ऐसा आपकी फैमिली का मेंबर है दैट यू हैव जस्ट हैड अ फाइट विद देम। ठीक है, कोई फैमिली का मेंबर है, आपकी उसके साथ लड़ाई हो गई है। Intense emotions क्या आएंगे? Definitely you're going to feel anger, you're going to feel hurt, you might feel betrayal or rejection. In that moment, distress tolerance is going to help you to pause, that you don't have to reply to them in a harsh tone, shout at them, or maybe bang the door, things like that, or do something that you regret। ठीक है, सिर्फ डीपीटी इस तक आपको रोक लेती है और मदद कर देती है। या कोई भी, अगर आपने कोई बैड न्यूज सुनी है, कोई ऐसी खबर मिली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है, तो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, उस टाइम पे मोस्टली क्या होता है, पैनिक कर जाते हैं या हम शट डाउन हो जाते हैं या बिल्कुल ही एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो स्किल्स है, ये इट्स लाइक आप कह लो कि किसी ने आपके फेस पे ठंडा पानी फेंका। ये वो स्किल्स है कि आप एकदम से शॉक में गए और किसी ने आपके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। दीज आर दो स्किल्स दैट हेल्प्स यू सर्वाइव क्रिटिकल मोमेंट्स उस टाइम पे। ठीक है, वो प्रॉब्लम तो खैर सॉल्व नहीं होगी, लेकिन जो उस टाइम पे जो आप महसूस कर रहे हो ना, उसको वो सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। बिकॉज हमें अपनी बॉडी को सबसे पहले काम डाउन करना होता है। जब इमोशंस हाई होते हैं, लॉजिक बिल्कुल लो हो जाता है। तो जब लॉजिक नहीं चलेगा तो फिर वी एंड अप डूइंग थिंग्स व्हिच वी माइट रिग्रेट एट द एंड। ठीक है, और यही पावर है डीपीटी डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स की, दैट वी आर गोइंग टू सर्वाइव द मोमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू सैबोटेज इट। चले जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसकी स्किल्स के ऊपर काम कर लेते हैं जितनी भी होती है आज। आई ट्राई कि आज ये वाइंड अप हो जाए, क्योंकि इसकी भी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जो डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स है, इनको क्राइसिस सर्वाइवल स्किल्स भी कहा जाता है। इट हेल्प्स यू टू डील विद द emotional incident without feeling overwhelmed. It's the ability to accept yourself, accept the current situation without judging yourself or without negatively criticizing yourself। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या करना है? सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, जज नहीं करना। नाउ दिस डजंट मीन दैट यू लाइक व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू।
It just means that you stop fighting the reality. एक चीज हो रही है उसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है? The moment we start fighting those things, we start feeling distress. ठीक है, हमने अपनी रियलिटी को फाइट नहीं करना, हमने एक्सेप्ट करना है और पॉज ले रहे हैं. जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी हम लॉजिकली सोच पाएंगे. जब हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और अपने रियलिटी से लड़ते रहेंगे, दैट्स व्हेन वी स्टार्ट टू लूज कंट्रोल. अच्छा जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है रेडिकल एक्सेप्टेंस का. रेडिकल एक्सेप्टेंस इज दैट accepting the fact that you cannot avoid painful or negative moments in your life. जिंदगी में ups and downs चलती है, हम downs को ignore या neglect या खत्म नहीं कर सकते, जिंदगी का हिस्सा है. बट हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उस चीज को. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर रिजेक्टिंग रियलिटी डज नॉट मीन चेंजिंग रियलिटी. रिजेक्टिंग रियलिटी टर्न्स पेन इनटू सफरिंग. जब हम रियलिटी को रिजेक्ट करते हैं ना, जो पेन होती है वो सफरिंग की तरफ चली जाती है. ठीक है, इसको हम वो भी कहते हैं, डिनाइल भी कहते हैं. डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिनाइल, कि हम डिनाइल में चले जाते हैं. अगर कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है, ठीक है, कोई चीज सही नहीं चल रही है, कोई आपको कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया नहीं हुई, किसी एडमिशन में अप्लाई किया नहीं आप कर पाए, तो हम क्या कहते हैं, यार ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया मेरे साथ. मोस्टली इस तरह के स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं और यही स्टेटमेंट्स है दैट कीप्स अस स्टक. हमने क्या कहना है कि देखो जो भी हुआ आई कैन नॉट चेंज. ठीक है, इट्स मेंट टू बी. ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ इट्स गोइंग टू पास वेरी सून. ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है. विद फ्यू डेज थिंग्स विल गेट बेटर. दैट हेल्प्स यू टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स हीलिंग. ठीक है. ऑलराइट, टिप स्किल्स क्या है जी? टिप स्किल्स टू काम डाउन फास्ट. उसी टाइम पे किस तरह से अपने आप को काम डाउन करें जी. टिप टीज मीन्स टिप द टेम्परेचर ऑफ योर फेस विद कोल्ड वाटर और आइस. उस टाइम पे आप जो है ना, उसी टाइम पे अपने फेस के ऊपर ठंडा पानी डालें. इंटेंस एक्सरसाइज करें, जैसे स्टार्ट जंपिंग जैक्स. ठीक है, स्टार्ट रनिंग अराउंड even just for 1 minute. और paced breathing, slow your pace of inhaling and exhaling. deep breaths ले और slowly deep breaths ले. ठीक है, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को काम डाउन करते हैं, हम अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और दैट्स व्हेन वी सर्वाइव द मूवमेंट. ठीक है. सो डिस्ट्रेस टॉलरेंस हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा है इमीडिएटली, लेकिन हमको वो सिखा रहा है कि हम अपने आप को कैसे सबसे पहले कंट्रोल कर सकते हैं. Alright, on that note, let's move forward towards accepts. Accepts helps you to distract yourself from intense emotions until they pass. ठीक है, it's a short term coping skills, it's not avoidance forever. लेकिन उस टाइम के लिए आप एक्सेप्ट करें कि whatever is happening around me, it's real and I cannot do anything. ये वही बात है, रेडिकल एक्सेप्टेंस से ही एक्सेप्ट्स की आई है. सबसे पहले डू एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू टू फोकस ऑन द मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट क्लीनिंग योर रूम, स्टार्ट हैविंग अ वॉक, स्टार्ट कुकिंग एनीथिंग, स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग योर ईमेल, स्टार्ट क्लीनिंग अप योर लैपटॉप, एनीथिंग. उस टाइम पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जो आपके ब्रेन को फॉर अ टाइम में डिस्ट्रैक्ट करे, बिजी करे. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट, डू समथिंग काइंड फॉर समवन एल्स, किसी और की हेल्प करें. ठीक है, किसी को मैसेज कर दे, किसी का हाल चाल पूछ ले, किसी और के लिए कुछ अच्छा करे. कंपैरिजन, पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. कंपैरिजन का ये होता है कि आपने अपने आप को रिमाइंड ये करवाना है कि आपने यू हैव सर्वाइव बिफोर, तो आप अभी भी सर्वाइव कर सकते हो. मैंने पहले भी पुरानी चीजों को मैंने हैंडल किया है, तो मैं ये वाली चीज को भी अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ. देन इमोशंस, क्रिएट अ डिफरेंट इमोशन टू compete with the painful one. कोई फनी वीडियो देख ले, कोई ऐसा म्यूजिक सुन ले जो आपके मूड को उस टाइम पे अच्छा करे, कोई और ऐसा इमोशन फील करे जो आपको उस टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीव करे. पुशिंग अवे, अच्छा कोई भी चीज आपने करनी है और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा, राइट इट अप ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट इट ऑन द बॉक्स. और उस बॉक्स को आप साइड पे कर दें कि मैं इस चीज को बाद में डील करूंगी, अभी इस वक्त आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि मैं इस चीज को अभी डील कर सकूं.
ठीक है। थॉट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और अपने थिंकिंग को फौरन शिफ्ट करें। मे बी स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 100, कोई स्पेल बैकवर्ड्स, कोई पजल कर ले। एंगेज योर माइंड इन समथिंग, अपने थॉट्स को नोटिस करें और उनको पॉजिटिव में फौरन चेंज करें। लास्टली सेंसेशंस, यूज सेफ फिजिकल सेंसेशंस, कोई भी, maybe you can hold the eyes to calm yourself down, you can squeeze a stress ball। उस टाइम पे ये बहुत हेल्प करती है, स्पेशली अगर आप किसी भी क्लाइंट को ये टिप्स बताएंगे ना जो इमोशनली बहुत ज्यादा डिसरेगुलेटेड है, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी। ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स इम्प्रूव। अच्छा, मैं अभी आप लोगों से इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही, इंटरेक्ट करें, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू सेव अप द टाइम एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू एज मेनी स्किल्स एज आई कैन, बिकॉज डीपीटी की जो स्किल्स है ना वो बहुत इफेक्टिव है, क्विक है, शॉर्ट है, लेकिन बहुत सारी है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई बात ऐड ऑन करना चाहता है? ठीक है, ऑलराइट, ऑल गुड, थैंक यू हरम। अच्छा जी, अब हम बात करें इम्प्रूव की। इम्प्रूव क्या कहते हैं? अच्छा, ये इम्प्रूव, एक्सेप्ट, ये उन्होंने क्या किया हुआ है कि सारी चीजों को एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है ताकि आपको याद रहे, ये स्किल्स फिर भूलती नहीं है, वर्ड्स दिए हुए। Improve helps you to improve the moment that you cannot immediately escape the situation। कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे आप अभी escape नहीं कर पा रहे, तो you are going to use these skills। और ये वो स्किल्स है जो रियलिटी को चेंज नहीं करती, बट इट चेंजेस द वे यू सी दैट, इट चेंजेस द वे यू एक्सपीरियंस इट। सबसे पहले इमेजिनिंग, विजुअलाइज एनी पीसफुल रिलैक्सिंग प्लेस। ठीक है, मे बी माउंटेन्स, अ बीच। यस फातिमा, आप जा सकती है, इट्स ओके। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जो बाकी की चीजें, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी में यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ एट अ वेरी पीसफुल प्लेस, एट अ वेरी रिलैक्सिंग प्लेस, जहाँ पे व्हाट डू आई सी, व्हाट डू आई हियर, व्हाट डू आई फील, व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, ये आप इमेजिन करेंगे तो यू एक्चुअली गोइंग टू फील रियली गुड अबाउट इट। ठीक है, एंड अभी तो आज तो नहीं, इंशाल्लाह कल आई विल ट्राई कि आपको एक इमेजिनरी गाइडेड इमेजरी की मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगी। देन वी हैव मीनिंग, find a meaning in any difficult moment। What is this teaching me? इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या जिंदगी में मुझे ये क्या चीज सिखाना चाह रहा है। ठीक है, कोई ऐसा रिजेक्शन आपको हो गया तो ये रिजेक्शन से मुझे क्या पता चल रहा है। मे बी इट्स हेल्पिंग मी बिल्ड resilience in me, maybe it's helping me to clarify what do I actually want in my life। prayer, ठीक है, connect to something bigger than yourself। नमाज पढ़ ले, नफिल पढ़ ले, डू एनीथिंग, कोई भी ऐसी अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह पढ़ ले, डू एनीथिंग स्मॉल स्पिरिचुअल थिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प यू रियलाइज दैट लाइफ इज मच 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 बिगर देन दिस। ठीक है, रिलैक्सेशन, काम योर सेल्फ, काम योर बॉडी, लिसन टू म्यूजिक, कोई सूरह सुन ले, सूरह रहमान लगा ले, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू टू रिलैक्स योरसेल्फ। O means one thing in a moment। ठीक है, फोकस ऑन ओनली वन थिंग व्हाट यू डूइंग राइट नाउ। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ फोकस करें कि मैं बर्तन धो रहा हूँ, अगर आप स्टडी करें तो सिर्फ फोकस करें कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, अगर आप कोई चीज ड्रॉ करें तो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग दैट यू आर डूइंग इट, व्हिच रिड्यूसेस ओवरवेलमनेस। ठीक है, vacation, take a short mental break, step outside, close your eyes for 2 minutes, do any quick thing, something light, not triggering, but something that you can do at that moment। encouragement, be your own coach, अपने आप को जितना encourage कर सकते हैं ना करें। tell yourself I can handle this, I can do this feeling will not last forever। ये आज है, ये कल नहीं होगा, मेरे इससे भी मुश्किल वक्त गुजारे में मैं ये भी गुजार सकता हूँ। अल्लाह ताला मुझे उतना ही टेस्ट कर रहे हैं, लाइक उतनी ही मुझे तकलीफ दे रहे हैं जितनी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और ये मेरे लिए एक टेस्ट है, मेरे लिए एक इम्तिहान है, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती है, छोटे छोटे तरीके होते हैं दैट हेल्प्स यू टू कोप अप विद थिंग्स। उस टाइम पे जो चीज मुश्किल लग रही होती है ना, उससे कोप अप करने के लिए आपको हेल्प करती है। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स, आई थिंक ये लास्ट है मेरे ख्याल से। अच्छा, now we are going to talk about pros and cons skills। ये भी डीपीटी की skills है that helps you to understand the consequences and pros and cons of your behavior, of your action
ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज हम इमेजिन करते हैं या कोई भी चीज हम सोचते हैं तो उसके साथ साथ ही एक्शंस भी फॉलो करते हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इमोशंस के साथ साथ अपने एक्शंस को भी नोट करें। अच्छा जी, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, एक सेकेंड प्लीज। Just give me a second, I'm coming back. अच्छा जी, प्रोज एंड कॉन्स में हमने सबसे पहले ये देखना कि whatever emotion that I'm experiencing and the kind of impact that emotion has, is it healthy for me or not? ठीक है, कोई भी आपको सबसे पहले हमने अर्ज को आइडेंटिफाई करना है, इसके पीछे क्या अर्ज है। कोई दिल चाह रहा है किसी को मैसेज करने का, कोई एंग्री मैसेज करने का दिल चाह रहा है, ठीक है, ब्लॉक करने का दिल कर रहा है, किसी को कुछ कहने का दिल कर रहा है, ये आपकी अर्ज है जो अनहेल्दी है। आपने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उस अर्ज के प्रोज एंड कॉन्स लिखे। ठीक है, अगर मैं इस टाइम पे इसको ये मैसेज कर दूं, इसका क्या फायदा होगा, आप मुझे बताएं, द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, क्या उसका प्रोज हो सकता है। अगर आपको सपोज किसी को गुस्सा आप पे आ रहा है, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है और आपने उसको एंग्री मैसेज कर दिया है, देन व्हाट विल बी द प्रो ऑफ इट। I don't know. I believe एक outlet मिल जाता है, like you can say whatever. यस जी, अच्छा हाँ, प्रो मैं पूछ रही हूँ, रुक से इबादत आपने बताया बहुत ज्यादा बात ज्यादा खराब हो सकती है, दैट्स कॉन। Maybe you feel relaxed.
जी, is everyone there? अच्छा मेरा ना इंटरनेट चला गया है एंड आई थिंक हैव टू वाइंड इट अप नाउ। इसको अब कल कंटिन्यू करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे प्रोज एंड कॉन से। अच्छा आई जस्ट वांट के जाने से पहले मैं आपको छोटा सा क्विक एक्टिविटी बताती हुई जाऊं कि जो स्किल्स अभी हमने की है ना उस पे से आई वांट कि आप आज कोई भी एक स्किल चूज करें और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें एंड देन यू हैव टू शेयर द एक्सपीरियंस टुमारो विद अस। ठीक है? चूज एनी वन स्किल which we have learned today, apply that skill on yourself, and then share the experience with us. All right, and on that note, we are going to end the session. कोई कुछ कहना चाहता है? Anyone who wants to say anything or ask anything, please go ahead. जी. Okay, Ruxi, you want to say something?